Yes, sir. You can continue, please. Okay. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Participants? Sir. Yes, sir, you are audible. Sir, yes, sir. Good morning, Okay. sir. Okay. I would Good like morning, this sir. session to be as interactive as possible. Okay? क्योंकि मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊंगा, आप भी मुझसे कुछ सीख पाओगे. The topic which Dr. Preeti Madam has mentioned that will be covered under Unit 1 are relatively easy except the theoretical framework and the ethical issues. Okay, so the first that today we are starting is a research philosophy and process, जो कि सबसे आसान है. And you have to keep in mind कि जो चीज हमें आसान लगती है वो सबसे डिफिकल्ट होती है. So as many of you have probably started working on your dissertation work, probably collecting some data. Some of you must have started writing something also. I hope this morning session will help you to streamline and fine tune the aspects of your research. Okay. So let's start with what Albert Einstein said. हम लोग research क्यों करते हैं? Because we are trying to explore something that we do not know, right? Had we knew what we were doing, it will not be a research, right? अगर मुझे पता है यहाँ से बर्डी के झांसी रानी स्क्वायर कैसा जाना है तो आई डू नॉट नीड एनी रिसर्च, आई विल सिंपली गो एंड स्टार्ट वॉकिंग. बट इफ somebody says go to a village in UP which I have never visited, then I will probably look into Google Map or do some search on the site. So most of the candidates who are conducting research are 70% into so-called unknown territory. अब there is a paradox. पैराडॉक्स ये होता है कि जब हम सिनॉप्सिस में हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एंटिसिपेटेड आउटकम, राइट? कि एट द एंड ऑफ माय रिसर्च व्हाट डू आई एक्सपेक्ट. सो दिस पैराडॉक्स वो रिसर्चर को पहले ही प्रेडिक्ट करने के लिए बता देता है कि आउटकम क्या आएगा, और वो आप आपके जजमेंट पे, आपके एनालिटिकल एबिलिटी पे या आपके इंटेलिजेंस पे वो आप कर सकते हो. Having said that, while conducting actual research, you will also get many other variable, many other observations which you can further add to be part of your hypothesis. So, majoritarily हम 70% unknown territory में काम कर रहे हैं ना. मैं अभी टीवी के सामने बैठा हूँ, कल परसों जो एग्जिट पोल आए कि आम आदमी पार्टी विल हैव अ लैंडस्लाइड इन दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD, आज एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है. सो दे आर नेक टू नेक. सो अगेन सर्वे के बारे में जब हम बात करेंगे, सो व्हेन यू आर टेकिंग ओपिनियन एंड परसेप्शन, not necessarily all findings will be correct, and that's what make research very interesting and challenging work. So let's start with the understanding of research. Okay, it can be very diverse in nature. आप किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी UGC ऑर्डिनेंस ऑन PhD. So you may explore the alien, you may talk about some particular species in the forest of Gadchiroli or anything. So it can be very diverse in nature. Okay, but the most important part in the research is re वापस खोजो. इसका मतलब ये है यू डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील. आपको पहिए को फिर से खोजना नहीं है. किसी और ने जो काम किया है उसी काम को आपको आगे लेके जाना है, नए डायरेक्शन से, नए तरीके से, नए मेथड से, नए सैंपल से. देयर आर एन नंबर ऑफ न्यू थिंग्स व्हिच यू कैन पुट इनटू द प्रीवियस रिसर्च. सो जैसे हम साइंस में देखते हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which was put by Albert Einstein had many spin-offs.
and ultimately it led to the founding of the black hole, right? So एक रिसर्च के ऊपर आप पिरामिड ऑफ रिसर्च बना सकते हो। अब कई कैंडिडेट को या उनके सुपरवाइजर्स को ये आइडिया नहीं होती कि ऐसा पॉसिबल है, बट it is possible. Say somebody has done a research from 1990 to 2000. Now, if I take his data and I run it from 2015 to 2025, obviously मुझे अलग रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं मेथड भी चेंज करूंगा तो मुझे और ड्रामेटिक रिजल्ट मिलेंगे। सो टिपिकली देयर हैज टू बी ए री इन द रिसर्च, और उसी से आपका एकेडमिक लिटरेचर आगे जाता है। टेक फॉर एग्जांपल द ग्लोबल थ्योरी ऑफ वार्मिंग। दुनिया में दो थॉट प्रोसेस है, एक कहते हैं दुनिया गर्म हो रही है और एक थॉट प्रोसेस कहता है दुनिया ठंडा हो रही है, हम कोल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। सो बोथ थ्योरीज आर देयर एंड बोथ आर बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड, बोथ आर बीइंग चैलेंज, और उससे अभी धीरे धीरे कोई चीजें जो है वो आ रही है। अभी वन थिंग विच प्रीति मैडम ने बताया नहीं मेरे इंट्रोडक्शन में, मैं अभी डेवलपमेंट रिसर्च यूपी और एमपी में भी मेरा चालू हुआ है। सो आई वाज इन यूपी 2 weeks ago, and one of the thing which while talking about the health issues मुझे ये बताया गया कि डायबिटीज रूरल एरिया में जो हो रहा है उसकी वजह शक्कर या अर्बन लाइफस्टाइल नहीं है, उसकी वजह है माइक्रोप्लास्टिक्स गेटिंग कंटेमिनेटेड इन द ग्राउंड वाटर। और मैं लिटरली कुर्सी से उठ गया, मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये माइक्रोप्लास्टिक से डायबिटीज क्यों हो रहा है? तो दैट इज अगेन अ न्यू सो कॉल्ड थॉट प्रोसेस। हमने कोविड के बाद भी कई सारा देखा, बिकॉज कोविड वाज समथिंग वेरी न्यू, और अभी लॉन्ग कोविड आ रहा है, पैनक्रियाज डैमेज हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है। सो वन हैज टू एम्फसाइज द री इन द रिसर्च। जो 80% मैं जितने यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ पीएचडी के बारे में बात करने में, मुझे वो दिखाई नहीं देता। सो द जनरल डेफिनेशन जो है रिसर्च की, उसमें 3 एस्पेक्ट आते हैं। हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड आंसर्स? नंबर 1 ऑर्गेनाइज, नंबर 2 लॉजिकल, एंड नंबर 3 सिस्टमैटिक। अगर आपके राइटिंग ऑफ डेजर्टेशन, आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में ये 3 एस्पेक्ट नहीं होंगे तो वो आपके लिए डिग्री तो आपको मिल जाएगी, पर मैंने अगर आपको खड़ा किया और बोला कि आपके टॉपिक पे जरा बात कीजिए, तो शायद कई लोग वो कर नहीं पाएंगे, राइट? सो ऑर्गेनाइज मीन्स, वो उसका आगे भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। when you are conducting a research over a period of 5 years, you have to maintain a research booklet, a research diary, क्योंकि हम ये वन शॉट में तो नहीं करते हैं, हम इसको फेजेस में करते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं। सो वी हैव टू नोट डाउन द एंटायर प्रोसेस। लॉजिकल का मतलब मराठीमध्ये त्याला तर्क म्हणतात, तर्क। तुमच्या संशोधनात तर्क नसेल तर मग इट बिकम्स अ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च। Anything that you make argumentative in your research becomes a logical argument, right? So when I say microplastic is causing diabetes in the villages of Uttar Pradesh, the question is why? Is it a random phenomena? Is it a universal phenomena? Or is it a cluster specific phenomena? Or is it something else? Right? So you build logical argument कि ऐसा क्यों, right? तो typically management commerce के इसमें I see a great deficiency of logical argument put into your thesis, and that is directly reflected to the title of your thesis. अगर आपका टाइटल नैरो और स्पेसिफिक है तो वहीं से लॉजिकल आर्गुमेंट बिल्डअप होती है। अनफॉर्चुनेटली आरआरसी जो टाइटल फाइनल करती है उसमें भी मुझे कई खामियां दिखती है कई यूनिवर्सिटियों में,
उसमें आपका ब्लेम नहीं है, द ब्लेम गोज अप टू द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑल्सो. सो द प्रेजेंस ऑफ लॉजिकल एंड देन सिस्टमैटिक. Systematic means once I open your thesis and start reading it, I should get a seamless experience of understanding what you are trying to say. So right from your chapter 1 until the end of your thesis, I should get exactly what you are trying to do in the context of your title, in the context of your statement of problem, in the context of aim, in the context of objective, in the context of hypothesis, and ultimately the limitation. हे करावं लागतं बरं का. मी आता मागच्या आठवड्यात एक ऑफलाईन झाला होता. मी बऱ्यापैकी रागवलो होतो मुलांना. नवीन बॅचचे पोरं होते ते. हे टाकावं लागतं तुम्हाला, नाही तर तो एक प्रबंध म्हणून तो प्रबंध बनतो आणि ही डिग्री तुम्हाला मिळवेल. आणि डिग्री घेऊन तुम्ही खूप कोण बात कर रहा है? सर मैं चार्मी बोल रही हूँ सर. आई एम फ्रॉम गुजराती, सो आई डोंट अंडरस्टैंड द मराठी. हाँ, तो मैं आपको राज ठाकरे का नंबर भेजता हूँ, आपको मराठी आ जाएगी. हाँ, अभी आपके कल चुनाव के नतीजे है. मी थोडं मराठी तर बोलणारच, नक्की बोलणार. थोड़ा नहीं समझना. हाँ, वो थोड़ा मत समझने दो, अच्छा है. हाँ, मैं थोड़ा बोलूंगा क्योंकि जो चीजें मैं पैशनेटली बोलूंगा ना, वो मैं मेरे मदर टंग से ही बोलूंगा. बाकी यहाँ पे चीजें पूरी अंग्रेजी में लिखी हुई है. थोडं मराठी बोलायची अनुमती मला आहे, घटनेने तो अधिकार मला दिलाय. So now, when you conduct a research, many a time I see a candidate either will accept all the hypotheses or reject all the hypotheses. Now that becomes, as I said earlier, it is a paradox because जर्नी शुरू होने से पहले ही कैंडिडेट अपने हाइपोथेसिस लिख लेता है. एंड मेनी अ टाइम वो सही नहीं होते और मेनी अ टाइम कुछ उसमें से सही हो जाते हैं. Right? So when a candidate is either accepting 100% or rejecting 100% becomes the questionable interpretation कि ऐसा क्यों हुआ. क्या उसका हाइपोथेसिस इनिशियली गलत था या उसकी मेथड गलत थी या फिर उसके टूल गलत थे. That is a different topic. What I'm trying to say, your research will never lead you to the truth. आप अगर कोई 100% हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हो तो आप कहते हो कि मैं सच्चाई के पहाड़ पे चढ़ गया, यही ट्रूथ है. मुझे ये बताइए, डू वी टॉक 100% इन अवर लाइफ? क्या हम 100% की बात करते हैं कभी जिंदगी में? हम कहीं बोलते हैं क्या ये 100% है करके? इज देयर एनीथिंग लाइक 100%? No, sir. No. So what is the nearest to the 100% that we talk on planet Earth? Nearest क्या है 100% के? 99%. 99%. 99.9. 9%. 95. What is that? 99.9 क्या होता है वो? क्या होता है वो? Almost perfect. When we talk about the gold, क्या गोल्ड के ऊपर लिखा होता है वो 100% शुद्ध सोना है? नो सर. So what is the purity of gold? 24 carat. Huh? 24 carat. So 24 carat translates into what? 99.9999. Correct? Sir. सोने के ऊपर आपने देखा होगा ना, प्योरिटी को वो 99.9999 में लिखते हैं 4 डिजिट में. इसका मतलब ये है देयर इज नो सच थिंग एज 100% इन द रियल वर्ल्ड. जब हम रिसर्च करते हैं तो हम स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं और स्टैटिस्टिकल टूल में हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होता है. आप में से किसी ने स्टैटिस्टिक्स यूज किया है? जब हम कोई टेस्ट लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल कितना होता है हमारे टेस्ट में? एनी इनपुट किती असतो? आपण जेव्हा एखादं टूल लावतो डेटाला तर त्याचा कॉन्फिडन्स 5%. किती?
95%. Who said 95? अरे किसने बोला बताओ ना, सही बोला है ना, मुझे नाम तो पता चलने दो। सर मैंने बोला है हाँ, चार्मी. Charmi. Okay. So while analyzing the data and testing the hypothesis, we use statistical tool with 95% confidence level. मतलब हम ये जानते हैं कि 5% गलत हो सकता है, right? So even for the research, we can barely go up to 95% unless अगर आप कोई एक आधा टूल लगा रहे हो जिसमें your confidence level is 100%, which I have never found such tool till date, or somebody applying it and claiming it. So the question is that you never get the truth while conducting the research. Rather, it is a journey. It is an exercise. Okay. साइंस में आप ट्रूथ के बहुत नजदीक जा सकते हो. से सम कैंडिडेट इज टेस्टिंग सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सम पॉलीमर्स, yeah, he can reach up to 94, 95, 93, never 100. Impossible to reach 100. Whereas in management and commerce, when you are testing perception about e-commerce or online buying of customer, it is a very subjective argument. Say the candidate is doing research for Nagpur district, it is only applicable to the Nagpur district. It is very difficult to have even pan Maharashtra, pan India universal appeal. But science का अलग है. A superconductivity will be same across the world, provided the polymer is of the same molecular combination, right? So in science, the rationale of truth becomes universal, whereas in other aspects of research, which is social science, I would call it, it becomes very fluid, very judgmental, and very region specific. अगर मैं अफ्रीकन कंज्यूमर का बिहेवियर टेस्ट कर रहा हूं तो वो अफ्रीकन कंज्यूमर को ही अप्लाई होगा. इट मे नॉट बी एप्लीकेबल यूनिवर्सली, right? And most importantly, a research should address long-standing problem in specific domain. अभी मुझे बताइए, अगर आप में से कोई विदर्भ या महाराष्ट्र के हैं, what are the problems in विदर्भ एरिया? हमारे क्या प्रॉब्लम्स है? काय आहेत आपले प्रॉब्लेम? क्या प्रॉब्लम है विदर्भ में? हेलो, अरे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं विदर्भ में? अनएम्प्लॉयमेंट. आहे सर, एम्प्लॉयमेंट नाही आहे. अनएम्प्लॉयमेंट, इरिगेशनचे सोर्सेस पण कमी आहे सर. इरिगेशनचे सोर्सेस कमी आहेत. शेतकऱ्याची आत्महत्या आहे सर. फार्मर सुसाइड, ओके. और ऍग्रिकल्चर वॉटर, अवर्षण, पाऊस कमी पडते कधी कधी. ओके, ड्रॉट प्रोन एरिया, ओके. 4 हो गए. और सर यहाँ लोग जानवरों से भी अब परेशान होने लगे हैं. टाइगर बहुत हो गए हैं. सो मैन एनिमल कंफ्लिक्ट, ओके, वेरी गुड. और करप्शन, वो तो खैर वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. पोल्यूशन इन अ सिटी लाइक चंद्रपुर, हाँ पोल्यूशन इज सर, देयर. पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. हाँ, सबसे ज्यादा गर्मी चंद्रपुर में है. In urban areas, traffic congestion, stress. So when we are looking at a particular geography, okay, 2009 में कपिल सिब्बल जब यूनियन एचआरडी मिनिस्टर थे तो ये डायरेक्टिव निकाला गया यूजीसी से, सब रिसर्च अपने एरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगेंगे. उस पे काम हुआ है, बट जितना अपेक्षित था उतना नहीं हुआ. से फॉर एग्जांपल यील्ड, एग्रीकल्चर यील्ड, कई जगह पे 1 एकड़ में से फॉर एग्जांपल 100 किलो होता है, कई जगह 80 होता है, किसी राज्यों में 200 होता है. सो कैन वी डू द रिसर्च एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यील्ड? बिकॉज माइंड वेल, no matter how we become Vishwaguru, we are still a
agrarian dominated economy. Majority of our people are still dependent on primary sector for their livelihood, right? So anything related to agriculture, not necessarily planting and growing, but maybe backward linkages, forward linkages, value addition, so on and so forth. So in 2016, I had a chance to go to Gapoli University, Agriculture University in Ratnagiri. We were working there on some project. And as a protocol, we have to meet the Vice Chancellor. So afternoon post lunch session, we went and met him, and the discussion started. And he said what his student has done. He was asking about, मुझे बताओ जो अल्फांसो है कहाँ का है वो एक्चुअली? हापूस आंबा हा कुठला आहे एक्चुअली? कोकण. रत्नागिरी कोकण रत्नागिरी कोकण और कोकण सर. कोकण अजून रत्नागिरी अजून मला नाव देवगड. सांग. Devgad. It is from Devgad. Now that Vice Chancellor told us that they found a new species, not developed in the lab. They found a particular species of mango in the wild, which is 5 times tastier than the Alfonso. And we said, whoa, that's a great finding. They said it is a wild plant, not planted in any mango orchards. And they studied the structure of that mango, why it is 5 times more tastier than Alfonso. And gradually, they would like to replace the so-called Devgad Alfonso into this new variety. Now, a mango tree takes around 8 and 12 years to grow and deliver the fruit, and then it stays up to 30 years. So you get the mangoes up to 30 years after the plantation. So that process, I hope it's already 5-6 years since we visited. They wanted to gradually introduce that particular breed, naturally occurring breed, into replacing the Alfonso. So in any specific area, just like in Nagpur area, when we are talking about oranges, the problem we have with the oranges is that इसका जूस बनाया नहीं जा सकता. ये आपको मालूम होना चाहिए. Having said that, हमारे नागपुर में एक फैक्ट्री है नोगा, नागपुर ऑरेंजेस ग्रोअर्स एसोसिएशन. नोगा का ऑरेंज जूस एक जमाने में बनता था, शरबत बनता था और कुछ चीजें बनती थी. वो बंद हुआ, फिर चालू हुआ, फिर बंद हुआ. आई एम नॉट श्योर अभी उसका क्या हुआ. Then Patanjali also said he will come and do research in Kalmeshwar. वहां पे उनका ऑफिस वगैरह है. The problem is that the species जिसको नागपुरी ब्रीड कहते हैं, संतरा नागपुर का नहीं है, वो कलमेश्वर वरुण काटोल का है. वो ब्रीड से आप उसको जूस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. उसके लिए आपको मैंड्रीन ऑरेंज लगता है, जो पतले साल का होता है, जो आपको मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, इवन चाइना में भी वो मिलता है. So farmers are gradually shifting towards Mosambhi because Mosambhi yields more, it takes less resources, and the price is better compared to the. So what I'm trying to say is that I have just only gave you the example. VNIT ने एक सर्वे किया था कोविड के पहले कि नागपुर के मेजर इंटरसेक्शनों पे ट्रैफिक के बॉटलनेक्स कहाँ है. And they invited me to share the social aspect कि उससे क्या हो सकता है. वो इंजीनियरिंग सर्वे था, but they wanted my input on the social aspect of it कि उससे क्या होगा. So stress level बढ़ेगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो आप जा नहीं पाओगे. And most importantly, the behavior to jump the signal. कुछ लोग एडवेंचर के लिए जंप दी सिग्नल मतलब सिग्नल लाइट को तोड़ के जाना, जब लाल बत्ती है तो सिग्नल ब्रेक करना. कुछ लोग एडवेंचर के लिए करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं. सो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो एनीथिंग व्हेन वी लुक एट फ्रॉम द प्रॉब्लमेटिक एंगल, एंड इफ द रिसर्च, आप आज से 3-4-5 साल बाद गाइड बनोगे, तो आपके पास कोई अगर कैंडिडेट आता है तो यू मस्ट कीप इन माइंड द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम जो है, उनको एलिविएट
एड्रेस, मैं एलिमिनेट तो नहीं कहूंगा, प्रॉब्लम कैनॉट बी एलिमिनेटेड और दे कैन बी मिटिगेटेड। तो आपका भी टाइटल उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि मैं 90% श्योर हूं वो नहीं होगा। नाउ ये क्वेस्ट जो है सच्चाई ढूंढने की, ये कहां से आई? ओके, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द एंशियंट period or ancient era, when humans started to live in the groups with some leader, and then later on when the kingdoms were formed, the empires were built, lot of things started to come. मतलब पहले हमने पत्थरों के टूल बनाए, फिर मेटलों के टूल बनाए, so and so forth. So tradition and custom also played very role. Similarly, authority. कोई राजा ने बोला कि आप इसका खोज कीजिए, इसके बारे में बताइए, तो लोगों ने रिसर्च किया। अब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पर्सनल एक्सपीरियंस का। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो लेड टू नंबर ऑफ डिस्कवरीज। बट जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं, इफ यू से लुक एट द ग्रीक mythology, even the contemporary or modern Greek civilization, democracy ग्रीक से आई, पाइथागोरस ग्रीक से आया, वेक्टर कैलकुलस ग्रीस से आया, अलजेब्रा मिडल ईस्ट से आया। सो lot of these things came during the time of empire building or under the authority of emperor. अब मुझे बताइए, धरती गोल है, इसकी खोज किसने की थी? टॉलमी ने, इसने सॉरी गोल कुपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने। वेरी गुड, प्रोबेबली यू आर अ रेअर पर्सन हु आन्सर्ड दिस क्वेश्चन. काय झालं होतं कोपरनिकस सोबत? व्हाट सर हैपेंड टू हिम? टॉलमी ने फ्लैट है ये बताया था, लेकिन उस समय के बाद कुपरनिकस ने शायद एक एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ नाव को कई अलग अलग डिस्टेंस पे रखा और कुछ दूरी से उसने ऑब्जर्व किया, तो उसको सर्कुलर आर्क मिला। वेरी तो गुड. उससे उन्होंने प्रूफ किया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। और उसके साथ हुआ क्या? व्हाट हैपेंड टू हिम? उसके बाद का नहीं पता सर, उसको शायद मारा गया. डेथ। हाँ हाँ ये पता है कि मतलब उन मारा तो गया, क्योंकि वो कुछ जो भी पहले से चल रहे सिद्धांत उनके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा बोल करके कई लोगों को मारा गया है। हाँ, उसमें उस समय जो ग्रीक का राजा था, उनकी सोच थी कि धरती चौकोन है, रेक्टेंगुलर है. ओके, और हाँ कोपरनिकस ने बोला था धरती स्पेरिकल है और सूर्यमंडल में चक्रे काटती है. तो हाँ इन लोगों को इन चीजों पे विश्वास नहीं हुआ और कोपरनिकस को अपने जान गंवाना पड़ा. And this is what happens when you are unable to substantiate the finding of your research. आप भले ही कोई भी खोज कर लो, बट आप उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाओगे तो लोग उसे बिलीव नहीं कर सकते. दी थर्ड वन इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस. अनुभव आते हैं लोगों को, राइट? जस्ट लाइक सर आइजैक न्यूटन, जब एप्पल नीचे गिरा, so Newton started thinking why the apple fell down, and it lead to the concept of gravity, which we are still using, and many people try to challenge it, but it is still unchallenged, right? Archimedes, क्या है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। उससे क्या होता है? डेंसिटी, उसका एप्लीकेशन क्या है? फ्लोटिंग होगा, फ्लोटिंग होगा या नहीं होगा। हाँ, और तो उसको आप साइंस बैकग्राउंड की है क्या? जी सर। तो बॉयंसी बोलते हैं उसको साइंस में, राइट? यस सर। So when Archimedes got himself into a bathtub, he observed that
वो बाथ टब से जो पानी बाहर आया वो उसके वेट के बराबर या उसके वेट से ज्यादा था, ज्यादा था। तो उसने वो वाटर का वॉल्यूम मेजर किया हाँ और उसे ये पता चला कि whenever the volume of water displaced by the body is equal to or more than the weight of the body, there is a buoyancy force which leads to the floating. और उसका इमीडिएट एप्लीकेशन ये हुआ कि पहले जो अ, लकड़ी के जहाज चलते थे पानी में, क्योंकि लोगों को लगता था लोहा डूब जाता है पानी में। आफ्टर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लोहे के जहाज बन के समुद्र में तैरने लगे। हाँ सो व्हेन यू सी अ जाइगेंटिक शिप इन द ओशन, यू मस्ट नो एज ए रिसर्चर कि वो अगर 5,000 टन की शिप है तो वो 5,000 टन या उससे ज्यादा का पानी डिस्प्लेस कर रही, इसलिए वो वहां खड़ी है। हे बघा, तुम्हाला हे संशोधन करायचं असेल ना, तर मी काल परवा एक डॉक्युमेंटरी, मैं थोडा मराठी बोल रहा हूँ, तर एक डॉक्युमेंटरी बघितली त्यात आइन्स्टाइन वॉज नॉट अ जीनियस. इन अर्ली स्कूल डेज ही वॉज स्टुपिड, पण त्यांनी एक स्वतः वाक्य म्हटलंय, आय वॉज पैशनेटली क्यूरियस, एंड आई लाइक दोज टू वर्ड्स. आपको अगर रिसर्चर बनना होगा ना, तो आपको पैशनेटली क्यूरियस होना चाहिए. क्यों? व्हाई? राइट? सो दिस इज द so called driving force behind many of the inventions and many more to come. I'm not saying कि invention खत्म हो गए, नहीं, ये तो शुरुआत है, because we have science and technology with us today. उस समय कुछ नहीं था, कई चीजों का खोज हो चुका है, बट उतनी ही और अननोन चीजें बाकी है. सो मैं रेयरली किसी ऐसे थीसिस के अक्रॉस आता हूँ कि जो इन चीजों को डेमॉन्स्ट्रेट करता है. 90% लोक तर डिग्री घेण्याकरता टायटल छापतात आणि PhD ची डिग्री घेतात हो. पैशनेटली क्यूरियस रिसर्चर ऐसा इक्का दुक्का मिलता है 2-3 साल बाद कि सही में वो उसके डेप्थ में जाके कुछ नई चीज खोजना चाहता है. सो एनीवे, एंड देन देयर इज अ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, एंड ऑफ कोर्स दी साइंटिफिक इंक्वायरी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. Again, Einstein said imagination is the highest form of research. जो curiosity, passion, imagination, you must imagine in context to your title कि आप क्या करना चाहते हो वो टाइटल में. What exactly you wanted to do with your statement of problem? What will be your approach? What kind of samples you will be taking? What kind of anticipated outcome you are looking at it? आप जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, आपका रिसर्च नहीं चमकेगा. वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना जस्टिफाई कर सकते हो. सो when we are looking at the nature of research, there are 5 aspects to it, and each aspect will have sub aspect. So just now we have seen the word systematic, organized and logical. जब हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं, प्लान, नियोजन करा, आइडेंटिफाई, मेरे वेरिएबल क्या है, कितने वेरिएबल्स है, सिंगल है, डबल है, मल्टीपल वेरिएबल्स है, मेरा स्कोप जो है वो कहाँ पे है, राइट, मेरे लिमिटेशंस क्या है, मेरी मेथड क्या है, देन यू डिजाइन इट. वंस यू डिजाइन योर रिसर्च, you collect the data and you evaluate. This is what we call it as a systematic way of conducting a research. कई बार कैंडिडेट बहुत जोश में शुरू होता है और फिर उसका जोश खत्म हो जाता है, उसको वो टेस्ट मैच लगने लगती है PhD का थीसिस. पहले वो T20 के स्टाइल काम करने लगता है, फिर वो टेस्ट मैच के स्टाइल में काम पे आता है. सो this is the most required element in your overall work of your dissertation. Without inculcating either of this, you will not give a full justice to your work, right? Second, logical.
where you are examining the procedures to evaluate the conclusion, right? Say for example, I am trying to make a new recipe. वो जो हम KFC की बात करते हैं ना, many people try to crack the code of KFC, Coca-Cola, Pepsi, but वो कोई उसको replicate नहीं कर पाया, right? So they start with varying some masala, some spices, some burning temperature, frying temperature, the quantum of or the quality of chicken, so on and so forth. At every step, they create multiple experiments and they try to reach as close as the taste of original KFC. Many people have failed. Same thing happened with Coca-Cola and Fanta and so on and so forth. So in context of research, हमें ये देखना है कि कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो साइंस के लोग करते हैं, राइट, और नॉन एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो मैनेजमेंट कॉमर्स वाले करते हैं. So while evaluating the conclusion, the procedure must be observed, right? कि मैं कंक्लूड करने से पहले ये देख चुका हूं और उसी के बाद मैं उसे कंक्लूड कर रहा हूं एंड आई एम बिल्डिंग that logical argument in my evaluation. I hope you got it. मी खूप वरच्या लेवलवर नाही बोलत आहे, तर्काबद्दल बोलतोय मी की तुम्हाला तुमच्या राईटअप, फाइंडिंग, ऑब्झर्वेशन मध्ये तर्क बिल्ड करायचा आहे आणि त्या तर्कावरनं तुम्हाला कन्क्लुजन्स काढायचे आहेत. गॉट इट? कळलं नसेल तर विचारा. द थर्ड वन इज रादर इझी. Either you observe the things or you look at the data of the experiment which you are conducting in a laboratory, and based on that you can say mine is a empirical research, observation based or data based, right? Then the fourth one is a reductive, where we are trying to establish general relationship among the data. याच्यात गंमत काय होतं? से फॉर एग्जाम्पल, लेट मी आस्क यू, इफ आई डबल यूर सैलरी टुडे, आप लोग क्या करोगे? आपकी तनख्वाह मैंने डबल कर दी, व्हाट यू विल डू? और इंथुसिज्म के साथ में वर्क करेंगे. ओके, एंथुसियाज्म के साथ काम करेंगे. और अरे बोला, हाँ, मोटिवेशन. मोटिवेशन. और ठीक है, मोटिवेटेड हो जाएगा. और क्या करोगे? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा सर. अरे मुझे इकोनॉमिक्स के एंगल से बताओ ना. ठीक है, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो गया. हाँ. आपको आज 100 रुपए मिल रहे हैं, कल मैंने आपको 200 कर दिए. आप करोगे क्या इकोनॉमिक्स के एंगल से उसको? The consumption will increase and savings will also increase. Spending will increase. प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे हर चीज को. ओके, The quality will also increase. तो आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, सेविंग इंक्रीज करोगे. अब जिन्होंने बोला कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, वो कौन सा कंजम्पशन होगा? डिस्क्रिएशनरी या नॉन डिस्क्रिएशनरी? जिन्होंने कंजम्पशन बोला, सही बोला. कौन सा कंजम्पशन बढ़ेगा? लॉन्ग डिस्क्रिएशनरी. डिस्क्रिएशनरी या नॉन डिस्क्रिएशनरी? डिस्क्रिएशनरी का मतलब जो हमें Yes, sir. जरूरी होता है. नॉन डिस्क्रिएशनरी का मतलब जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, बट वो हमें Both will increase. both will increase. Okay, okay, fine. नॉन डिस्क्रिएशनरी में क्या बढ़ेगा? तो आई एम ट्राइंग. हाँ, Like entertainment and leisure expenses will increase. हाँ, correct. And ultimately the sugar consumption will increase. Yes, sir. ओके, सो अगर मैं आपके घरों में आता हूं, जो कि अभी आप घर में से लॉगिन हो रहे हैं, और मैं आपके रेफ्रिजरेटर या आपका किचन चेक करता हूं, तो मुझे 50% लोगों के यहाँ मिठाई दिखेगी, इंक्लूडिंग माई हाउस. ऑल्दो आई एम अ बैचलर, बट आई स्टे विथ माई पेरेंट एंड माई ब्रदर.
we have lots of mithai in our fridge every day. The question is it a necessity? The answer is no. No. Then what it is? It is nothing but the affluence. हाँ? ये affluence है. हम जब छोटे थे तब हम साल में तभी मिठाई खाते थे जब कोई 10वीं और 12वीं का बच्चा पास होता था, तब पेड़ा मिलता था, या त्योहार में, या त्योहार में. वो मिठाई नहीं, वो घर में बनती थी. ये मिठाई में हाँ दुकान की मिठाई की बात कर रहा हूँ. जो आज हाँ आप नागपुर में 50 हल्दीराम देख रहे हो, वो हमारे कंजम्पशन का नतीजा है. वी आर कंज्यूमिंग दी मिल्क बेस्ड और खोया बेस्ड मिठाई टू सच ए लार्ज एक्सटेंट कि हम डायबिटीज का कैपिटल बनते जा रहे हैं दुनिया का. राइट. So coming to the point, the rise in disposable income will lead to the consumption of sugar. और शुगर कंजम्पशन से क्या होगा? आप ज्यादा शक्कर खाओगे तो क्या होगा? Health problems, diabetes, Diseases, obesity. ठीक है. obesity, Obesity. Okay. diabetes. Obesity. So rise in disposable income leads to increased consumption of sugar, and increased consumption of sugar leads to the obesity. ये देख रहे हो ना आजकल के नए बच्चे, ये ओबीज है. सो एक कैंडिडेट, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वन ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द वाइवा ऑफ एग्जामिनेशन वे बैक, she was from economics, and she when she tried to interpret this, exactly यही किया था जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो उसने बोला A leads to B, B leads to C, therefore A leads to C. तो उसने ये लिखा उसके कंक्लूजन में, rise in disposable income leads to the obesity, which is not correct. कर A leads to B, B leads to C, therefore A will not lead to C, not necessarily, right? So जब भी हम डेटा से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश, और वो उसकी ऑनेस्ट मिस्टेक थी, उसने जानबूझ के नहीं किया था ये. जब भी आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो, one has to be extremely careful in their interpretation. Got it? अब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी अपना वजन कम करने की कोशिश की थी. अभी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो जब सीएम बने, उन्होंने कोई न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया और ठीक ठाक वजन कम कर दिया. बट 2.5 साल जब उनके पास सत्ता नहीं रही तो वजन वापस आ गया. हाँ. So obesity is again, I'm not talking about obesity per se, I'm talking about the relationship of data. And when you are establishing that, kindly make sure कि if the phenomena is saying that A is leading to B and B is leading to C, the phenomena to link A to C is an honest mistake. Okay. And the last one is replicable, where your actions are recorded, you are setting some controlled experiments, or you are into an uncontrolled environment like in jungle or in metasphere, where you are observing just people or animal or trees or birds, right? So there you are recording the actions. Okay. So ये 5 एस्पेक्ट होते हैं रिसर्च के. नाउ आई एम गिविंग यू वन फैसिनेटिंग व्हाट यू कॉल ऑब्जर्वेशन और फिनोमिना. ओके. ये 2018 में पब्लिश हुआ नेचर कम्युनिकेशन के जर्नल में स्टडी थी. व्हाट वाज द स्टडी? नीडिंग टू वेयर ग्लासेस इज एसोसिएटेड विथ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब केवल इंटेलिजेंट लोग ही चश्मा लगाते हैं. ये आपने भी देखा होगा. हमारे जमाने में इसको इंटेलिजेंट बोला जाता था क्योंकि उस समय मोबाइल फोन और टीवी नहीं थे, तो केवल किताब पढ़ने वाले बच्चे चश्मे लगाते. आजकल 5 साल का बच्चा भी लगाता है क्योंकि वो मोबाइल फोन और टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठता है. और 2 साल जब ऑनलाइन स्कूलिंग हुआ
तो कई लोगों को चश्मे लग गए. So we are not getting to that. This is pre-COVID. So what they did, they collected the researchers from University of Edinburgh. They analyzed cognitive and genetic data of 300,000 people between the age of 16 to 102, which was gathered by the UK Biobank and the consortia, right? After analyzing these data, okay, they found that there is a significant genetic overlap between the cognitive function, reaction time, and many health variables, including eyesight, hypertension, and longevity. मतलब ये जो 3 लाख लोग लिए थे उनमें उनको जेनेटिक ओवरलैप मिला इन चीजों के बारे में. So specifically, people who were more intelligent were almost 30% more likely to have gene which might indicate they need to wear the glass. अभी चश्मा लगाना, ओके, उनको ये पता चला जो इंटेलिजेंट थे और उसमें के 30% लोगों के पास ऐसी जीन थी जिससे उनकी आईसाइट खराब होती थी. कळत आहे ना मी काय बोलतोय ते? नाउ आय डू नॉट एन्जॉय दी ऑनलाईन सेशन एनीमोर, कारण आता सगळं ऑफलाईनचा मोड आलेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आज परत ऑफलाईन मधनं ऑनलाईन मोड मध्ये आलाय. त्याच्यामुळे मला तुमचे चेहरे, तुमचे हावभाव मला काहीच कळत नाहीये. सो आय होप इफ यू डोंट अंडरस्टँड आस्क मी अगेन. सो the necessity to wear the glass is not because of intelligence but maybe because of faulty gene. तुम्हाला ज्या आई वडिलांकडनं जीन्स मिळतात त्यांना कळलं की 30% लोकांच्या जीन खराब असाव्यात किंवा होत्यात आणि म्हणून त्यांची आयसाइट खराब झाली, पण ते हुशार होते. यहाँ तक समझा आपको? अब आगे. It is also connected with lot of positive health benefit. मतलब being more intelligent is linked to the poor eyesight, but they also have positive health benefit. So they found a negative correlation between cognitive function and number of health problems, including angina, lung cancer, and depression. So those who were intelligent wearing glasses did not have the issues of lung cancer, angina, and depression. Now, it is important to understand that these are only the correlation and not the conclusive link. And it's worth noting that what constitutes intelligence is subjective and can be difficult, if not impossible to measure. Intelligence एक concept है. How do I measure intelligence? आप बोलोगे सर IQ measure कर लो. No. That is an old tool. IQ does not tell you the true picture of your intelligence. There are many new tools which are developed today which can tell about the intelligence a person is carrying. Now the question is, these are only the correlation, okay, and they are not conclusive. हम जब स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं, कोरिलेशन किसने खोजा था? Who invented the correlation? वहां से अपन शुरुआत करते हैं. पहले अपने को मालूम होना चाहिए कोरिलेशन किसने खोजा था. बताइए. Who invented the correlation? Any guess? गूगल पे वगैरह देख के मत बताइए मुझे. सर शायद सिगमंड Sir, फ्राइड. Carl Pearson. Who said Carl Pearson? कौन बोला कार्ल पियर्सन? अरे कोणी सांगितलं कार्ल पियर्सन बरोबर आहे? सांगा ना कोण आहे, मला Sir, कळू me, दे. Priya Kshirsagar. So it was a Carl Pearson who
इन्व्हेंटेड द कन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन आणि आपण त्याला काय म्हणतो क्षीरसागर मॅडम? केपीसी, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. हम Coefficient. उसको Yes, sir. हाँ केपीसीओसी भी बोलते हैं या केपीसी भी बोलते हैं, राइट? नाउ अभी आप मत बताइए इसका जवाब. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन? उसको कैसा मेजर किया जाता है? -1 to +1. Minus Value of 1 to plus 1. Very good. +1. Yes. -1 means -1 -1 means was negative. Perfect Negative. negative correlation. Yes, sir. Perfect perfect negative. negative or strong negative, Yes. and +1 is Perfect positive correlation. perfect positive or perfect strong correlation, right? So it is not a conclusive link. Now जब हम PhD का थीसिस में डेटा एनालिसिस करते हैं, हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं, राइट? और कोरिलेशन पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अगर ठंड बढ़ी तो मैं ज्यादा वूलन कपड़े इस्तेमाल करूंगा. So there is a correlation between the quantum of cold and the amount of winter clothing that I will be using. If it is a mild, I will use half sweater. If it is a moderate, I will use a full sweater. If it is extreme, I will use full sweater plus overcoat plus blanket plus blah blah blah. What? So in a general world, we tend to rely on correlation and interpret the facts based on correlation. Nothing wrong with that. But in a scientific world, such interpretation are not conclusive. अब मैं आपको 3 साल पहले का किस्सा बताता हूँ. दिसंबर 2019 में जब वुहान में पहले कोविड के केसेस लाइमलाइट में आए, उसके बाद अप्रैल 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुई चाइना से, एंड दे सेड जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है उनको सबसे ज्यादा वायरस ने अटैक किया है. लोग डर गए ओ वाले, और जो बाकी के ब्लड ग्रुप वाले थे वो रिलैक्स हो गए. आने वाले 6 महीने में अक्टूबर तक ये पता चला कोविड ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता. देयर इज नो correlation that only O positive will get virus and other blood group will not get. ऐसा कुछ नहीं हुआ. Number of correlations were worked out during the COVID pandemic. बहुत कुछ किया गया. Ultimately 90% was rejected. Why? Because very few people, 1-2-3% लोग ही वो वायरस को समझ पाए. बाकी सब रूल ऑफ थंब पे चल रही थी दुनिया. इवन ट्रीटमेंट, पहले हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन दिया गया, जो ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तब ये बात हुई थी. ये मैं इनिशियल स्टेज की बात करता हूँ. हमारे इंडिया में जब डेल्टा आया 2021 में, तब रेमडेसिविर दो, प्लाज्मा दो, ऑक्सीजन दो, और हेल्थ तो चालू हो. तो ट्रीटमेंट अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है. आज ही मॉर्निंग में आपको बताता हूँ, आई गेट अप 4 o'clock in the morning and I was reading the article. अभी जो नया वैक्सीन बनाया गया था ओमिक्रॉन के लिए, उसको एस्केप करने वाला BQ1 नया वेरिएंट अमेरिका में आज छपा. राइट? सो हमने जो भी वैक्सीन बनाए, अभी ओमिक्रॉन का डोज हमें चौथा डोज कुछ रिसर्चर लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है. गवर्नमेंट का ध्यान अभी इलेक्शन लड़ने में है 2024 तक, एंड फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उतना प्रिविलेंस कोविड का नहीं है, बट हमारे नेबरिंग चाइना में 30-32 हजार का प्रिविलेंस चल रहा है. सो अगेन कमिंग बैक टू द कोरिलेशन, दे आर नॉट कंक्लूसिव लिंक. आप में से जिन लोगों ने शादी की, आपने कुंडली मॅच करके शादी की का? ते पत्रिकेतले गुण मॅच करून किती लोकांनी लग्न केलं सांगा बरं मला. ऑनेस्टली सांगा की आम्ही पत्रिका मॅच करून लग्न केलंय. गुण काय ते 36 गुण असतात, किती लोकांनी केलं? मी केलंय. हा, तुम्ही केलाय. जयश्री फोटे. ओके, अजून कोणी? सो हम जब पत्रिका मैच करके देखते हैं, इज टू बेसिकली एस्टेब्लिश अ कोरिलेशन कि जिनसे आपका रिश्ता
होने वाला है उनका और आपका कोरिलेशन सही हो, ये हम पत्रिका से देखते हैं. मला रिएलिटीमध्ये सांगा, रिएलिटीमध्ये it doesn't work out to that expectation. There is no such thing as ideal marriage, what I'm trying to say. मग लोक हे का करतात, पत्रिका का बघतात, गुण का मिळवतात, हे त्यांच्या समाधानासाठी करतात. As a researcher, I can challenge this thing do not work. Absolutely. These are only the so-called comfort parameters. So as a researcher, आप जब भी कोई भी कोरिलेशन देखोगे वो कंक्लूसिव नहीं होता. ये ध्यान से सुन लो. क्यों मैं आपको बार बार बता रहा हूं? क्योंकि हम अपने पीएचडी थीसिस के सब इंटरप्रिटेशन इसी के ऊपर करते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल अप्लाई कोरिलेशंस टू दी पैरामीटर्स एंड दे विल कंक्लूड. बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज डाल के रखो, वो कंक्लूसिव नहीं होता, वो केवल इंटरप्रिटेशन के लिए होता है. आप जब कोई पोस्ट डॉक करोगे, अभी मैंने लगभग 26 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट किए एंड 15 मेजर किए. अभी आपसे 2 दिन बाद बात करने के बाद मंडे अगेन आई एम गोइंग टू दी बॉर्डर ऑफ एमपी एंड यूपी. अगेन फॉलोइंग वीक आई एम गोइंग टू बिहार. उसके बाद आई एम गोइंग टू महाराष्ट्र. सो आई एम अ फुल टाइम रिसर्चर नाउ. अभी कोविड के बाद अभी काम बढ़ गया है हमारा, वो 2 साल जो काम नहीं हुआ. सो वी ऑल्सो नो दैट whenever we are trying to recommend a policy intervention based on correlation, we have to be cautious that the relationship observed was through only correlation and it may not work as it may sound. So there is already a plenty of empirical evidence that wearing the glasses, whether you need them or not, make people think you are intelligent. बरोबर है? And number of studies have found that people who wear glasses perceived as smarter, more dependable, industrious and honest. ये एक छोटा सा फिनोमिना, ये एग्जांपल आपको दिखाने की जरूरत ये है कि when we see certain thing, we should look it from the scientific angle also. What does it truly says? ये छोड़ दीजिए कंप्यूटर रिसर्च, जो कि हम, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग कंप्यूटर के हैं. The objective of the research, okay, they are to be smart. S मतलब specific. Your title, your statement of problem, your aim and objective, it should be as specific as possible. अभी 2 हफ्ते पहले मैं जब ये रिसर्च पढ़ाने गया था, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, ये सीपी एंड बेरार वालों ने किया था. तो बाहर उनके सबके टाइटल, मैंने कहा आई वांट टू रीड टाइटल ऑफ एवरीवन. तब तक आप आपका ओपनिंग सेरेमनी और भाषणबाजी चालू करो. 98% टाइटल गलत थे. 98%. ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ. वो भाषण देने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं यूनिवर्सिटी के. मैंने मेरे सेशन में बोला था कि आई चैलेंज द टाइटल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज इक्वल टू हाइपोथेसिस. मुझे 5% से ज्यादा ऐसा मिलेगा नहीं. अब इसमें किसका फॉल्ट है ये मुझे नहीं पता, बट जब हम हायर लेवल पे रिसर्च करते हैं, सो यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक एज. हे झालंय तुमचं, आता तुम्ही म्हणाल सर का सांगता, आम्ही तर बदलू शकत नाही. बरोबर आहे, पण हे लक्षात ठेवा. सेकंड, मेजरेबल. unless and until you quantify the value of your research will not go up. लोग केवल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, उसमें उनका भी फॉल्ट नहीं, उनके गाइड का भी फॉल्ट है, कई लोगों का फॉल्ट है. बट यू एज एन इंडिविजुअल PhD scholar should take the sole responsibility, because we are not talking here kindergarten, high school, UG or PG. We are talking here the utmost आचार्याची डिग्री. लक्षात ठेवा, काम करताना क्वांटिफिकेशन इज अ मस्ट. यू हैव टू मेजर इट. Now how do you measure it? There are n number of techniques available. हमने
रत्नागिरी में हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला, थैंक्स टू प्रोफेसर गांधी हु टेस्टेड दिस कंसेप्ट इन द कंट्री ऑफ भूटान, और भूटान इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला। देन आसाम इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कम आउट विद वेलनेस एंड वेलबींग इंडेक्स। अब महाराष्ट्र में वो आदिवासियों के लिए करने का हमारा काम चालू है। सो क्वांटिफिकेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मेजरिंग द हैप्पीनेस is a very complex task. I may end up talking up to 4 p.m. today, which still many of you will not understand कि सर इसको quantify कैसे करें, right? वो passionate curiosity के लक्षण ठेवा। थर्ड, अचीवेबल, आपको जो 5 साल का टाइम दिया गया है वो 5 साल में होना चाहिए। आर रिलीवेंट। मुझे बताइए जेंडर मामलों के लिए आज के तारीख में 21वीं सदी में कौन सी समस्या है? सांगा बरं। सर क्वेश्चन एक बार फिर से। What are the current issues faced by gender in 21st century in India or in the world? जेंडर म्हणजे मी महिलांचे समस्या विचारतो आहे, पुरुषांच्या नाही। सर हाउस Equal pay, इक्वल पे, equal work, ओके, equal pay. हाँ ओके, फेयर इनफ। और इक्वालिटी। इक्वालिटी और सर लेडीज लोगों को घर और बाहर दोनों भी करना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा एडजस्ट करने में या समय उतना देने में वो कहीं ना कहीं कम हो वर्क जाती है। लाइफ बैलेंस, ठीक है। और बताइए, और क्या समस्या है? ये बराबर है, आपने जो भी बोला है बराबर है। और सर जहाँ काम करते हैं तो ये चीज भी देखने में आता है डोमिनेंट कि डोमिनेंट मेल डोमिनेंस होता है, वो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है एज कम्पेयर टू लेडीज। हाँ ठीक है, एवरीवेयर और डोमिनेंट। ठीक है, मेल डोमिनेंस वो तो इंडिपेंडेंस नहीं पैट्रियाटिक मिलता। सोसाइटी है। हाँ इंडिपेंडेंस ओपिनियन रखने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ मिलता नहीं। इंडिपेंडेंट नहीं करते रह सकते। okay, what I was expecting, the answer is me too, sexual harassment, right? ये अभी का बर्निंग टॉपिक है पिछले 5-6 सालों से, राइट? सो चाहे वो नागपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी लड़कियों के साथ हुआ हो, या चाहे कोई वो जो महारथी है उन्होंने फैकल्टी से 15 लाख रुपए लिए वो हो, we don't know what is the truth behind that, but the harassment, and that too a sexual harassment, is the biggest issue in the world currently for the woman. आपने जो भी बोला वो सब सही है। सो टॉपिक लेते समय अगर मेरे पास एक कैंडिडेट आती है और वो बोलती है कि मैं भंडारा जिले में दहेज उत्पीड़न के मामले के बारे में स्टडी करूं, है, मैं ये नहीं कहता कि दहेज उत्पीड़न ये मामला नहीं है, बट इसका क्वांटम कम हुआ है या इसका रिलेवेंस कम हुआ है, राइट? आपको कोई भी टॉपिक लेने के लिए कोई रोकेगा नहीं, बट आपका टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए। वैसे ही फाइनेंस में हम लोग अभी इंडिया में रिलेवेंट क्या है, आपका ई बैंकिंग, जनधन अकाउंट होने के बाद हुआ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हमारा 2015-16 से चालू है। दीज आर द रिलेवेंट टॉपिक्स। तो कैंडिडेट क्या करता है, वो स्टडी ऑफ चॉइस ऑफ म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट अमंग दी सिटीजन्स ऑफ, अबे हे कोणता टॉपिक आणला बे तू पीएचडी साठी? मला कीव येते त्याची, त्याच्या गाईडची आणि आरआरसी कमिटीची, त्या विद्यापीठाची। वो नाम के लिए आप टॉपिक ले रहे, अबे रिलीवेंस तो लाओ उसको। मिलते हैं ऐसे टॉपिक, 10 में से 1-2 लोग ऐसा गजब टॉपिक देते हैं, ये रिलीवेंट होना चाहिए। ये पढ़ के मैं थक चुका हूँ, पिछले 4-5 साल से मैं यही पढ़ा रहा हूँ। लोग अभी भी, हाँ चलो एक वक्त के लिए मैं मान लिया, चलो किसी भी टॉपिक को पीएचडी मिलती है, बट जब हम लोग स्पॉन्सर्ड रिसर्च करते हैं, जब हमें लोग लाखों रुपए देते हैं, तो ऐसे टॉपिक को हमें 10 पैसा भी कोई देगा नहीं। हमको रिलीवेंट जो अभी अंडर करंट है, राइट? पोस्ट कोविड एक नया बिहेवियर चालू हुआ है,
बच्चों का अटेंशन स्पैन, बच्चों को लगा हुआ इंटरनेट का एडिक्शन, राइट, लिथार्जी, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में अचानक कम हो गई, स्पोर्ट्स बंद हो गए, या हे समाजातले प्रॉब्लेम आहेत बरं का, याच्यावर करा ना तुम्ही. हाँ, आप लोगों का अगर 2021 में हुआ है तो आप लोगों ने कम से कम पहला फेज देखा था. खैर पहले फेज के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, शायद मेरा भी नहीं होगा, बट अभी के लोग जिन्होंने 22 में रजिस्ट्रेशन किया है तो उन लोगों को तो कम से कम मालूम होना चाहिए था कि मैं इससे रिलेटेड कोई टॉपिक लू. अजिबात दिसत नाही. म्हणजे जे लोक येतात त्यांची मी गोष्ट करता, बाकी असतील तर असतील. सो रिलीवेंट वो होना चाहिए. आज पोल्यूशन, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये बर्निंग टॉपिक्स है. तो इससे तो वो कैंडिडेट लेता है कोई अल्गोरिदम का. मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो इंफीरियर टॉपिक है, बट टॉपिक हैज टू बी करंट. ओके, एंड देन दी लास्ट टाइम बाउंड विच इज सेम एज दी अचीवेबल, मतलब वो हमारा तय समय सीमा में होना चाहिए. नाउ नंबर ऑफ scholars, academicians, researchers have written literature about the motivation of research. So Sakaran was one of it, which I like because he said it is a process to find a solution after making deep analysis. Deep analysis. खोलात जाऊन अभ्यास करा किंवा सखोल अध्ययन कसं conducting a studies of relevant factors. Okay, so you do an in-depth analysis and also conduct the study of relevant factor. What is causing it? Then a lot of people also said it is a method designed to ensure that information obtained is reasonable and supported by quantitative and qualitative data that involves systematic process. Because entire research is based on information, right? So it has to be reasonable, and that information has to be supported by both qualitative and quantitative data, right? And it should have the systematic approach. Third, it includes a process of designing research method, collecting and describing data and reporting information. So for one particular topic, you can have n number of research design. So candidate itself design a method. मैं कल मुझे अभी जो एमपी यूपी बॉर्डर पे जाना है ना, कल ही मैं एक मेथड उनको एक फ्रेमवर्क डिजाइन करके दिया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और उसके पीछे के लॉजिक दिए मैंने कि वो अर्बन एरिया है, वहाँ पैसे वाले लोग ज्यादा है, गरीबी कम है, सुबत्ता है, तो मैं ये अप्रोच लूंगा. जब मैं बैकवर्ड एरिया में जाता हूँ तो अलग अप्रोच लेता हूँ. Where people are less educated or less prone to give the perception. The perception survey करायला चाललो आहे, urban and rural area. So the method can be depending on the topic and geography that you are working. Okay, and of course collecting and describing the data and reporting information. Thus, a research would find answer that resolve the uncertainties of a problem. Right? जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, सर दर्द आपका होने लगता है, तो आप क्रोसिन, एनासिन क्या है वो लेते हैं, आपको रिलीफ मिल गया, अगले दिन फिर सर दर्द चालू होता है, तो आप बोलते हैं यार कल ही मैंने दवाई ली, अब ये क्यों हो रहा. तो आपको पता रहना चाहिए कि मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है. क्या मुझे टेंशन है, क्या मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, क्या मैंने खाना कम खाया है, क्या मैंने ओवर एक्सर्शन किया है जो मेरी बॉडी थक गई है, या मुझे माइग्रेन है, या मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, या मुझे कैंसर है. आपण जातो का इतक्या खोलात. अभी मैंने बॉम्बे में था लास्ट मंथ, कपल ऑफ किड्स डाइड. तो ऑफ कोर्स मैं उसके फ्रंट में नहीं गया, बट बैक में था उसके में. आई वांटेड टू नो व्हाई दिस किड्स डाइड इन स्लम. वो माँ बाप ने बोला अरे जनरल बुखार था तो हमने उसको आधा क्रोसिन दे दिया, फिर थोड़ा कफ सिरप और गर्म पानी वानी दे दिया. इनफैक्ट उनको
हे जे गोवर जो प्रकार आहे ना जो आता वाढलाय उससे मरे वो, दे कुड नॉट डिटेक्ट. हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ थंब, हम अपना एनालिसिस खुद करते हैं. ताप आला ना जाईल 1-2 दिवसात. पण आजच्या युगामध्ये जिथे व्हायरल बॅक्टेरियल हे कळलं पाहिजे. आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि लोग इंडिया में मैक्सिमम बैक्टीरियल चीजों के लिए, सॉरी वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं. एंटीबायोटिक हे व्हायरल साठी आहे की बॅक्टेरियासाठी असतं? इट इज फॉर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. हे हे विज्ञान ना तुम्हाला कळलं पाहिजे. बट इट इज नॉट अबाउट युअर PhD डिग्री. इट इज अबाउट हाऊ व्हॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हाऊ यू लुक इन टू थिंग्स, हाऊ यू draw the conclusion from the perception, and whether you truly understand science. So, the scientific method, as we call it, the first and foremost is to develop the problem and delimit. Delimit का मतलब क्या है? I hope. What do we mean by delimiting a research problem? Delimit म्हणजे काय? Any answer? Limitations of the study. Okay, so it is not accurate answer, but it is close answer. When we delimit a problem, उसका मतलब है हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक लक्ष्मण रेखा डाल देते हैं उसके चारों तरफ. मतलब मैं मेरा स्कोप फ्री करने, काय रिस्ट्रिक्शंस फ्री करने. नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं. सी, द रीजन टू डीलिमिट, प्राइमरी रीजन इज अ टाइम एंड रिसोर्सेस. आपको 5 साल में वो काम करना है कम पैसे में, right? So the reason we delimit it either by taking a geography. So instead of studying Maharashtra, I only study Vidarbha. Okay, instead of studying Vidarbha, I study only Nagpur. That is one approach, toning down the scope. Second, when you are looking at a time frame where you think that you may not able to get the relevant information or data in a specific time period, then you also delimit it from the design aspect. अब मैं जो काम करता हूं, you won't believe it. मैंने यूपी में जो काम किया, मैंने 14 नवंबर से 20 नवंबर काम किया. कल मैंने मेरा 132 पन्ने का फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया. उसके पहले मैंने 2 हफ्ता मेरा ओन रिसर्च किया. So within 30 days, it is as good as a thesis for Raebareli district, right? So when you do it professionally with a very narrow, अब जो MP का करना है मुझे वही करना है. I will be going on this Saturday, coming on next Sunday or Monday, 10 दिन बाद, और मुझे 15 दिन बाद वो रिपोर्ट सबमिट करनी है. इमीडिएटली एक महाराष्ट्र का भी एक लेना है. सो डीलिमिट मतलब आपके पास समय और रिसोर्सेस कितने हैं. टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स. सो अकॉर्डिंगली आई स्ट्रक्चर माई डिजाइन. आप आपका प्रॉब्लम तो आपने अब थीसिस में डाल दिया होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. अभी आपके थीसिस में तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है फॉर दैट मैटर, बिकॉज everything has been crystallized in your synopsis. But whenever taking a research into consideration, putting a Lakshman रेखा is important. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आप सभी को एक बुफे में बुलाया होटल ल मेरिडियन पे. आप में से कुछ लोगों ने 2 दिन खाना नहीं खाया, कुछ लोगों ने अभी सवेरे खाना खाया, और मैंने आपके सामने 200 डिशेस रख दी. तो हर कोई अपने चॉइस से खाएगा. जिसने कुछ खाना नहीं खाया हो सकता है वो कुछ और खा लेगा. जो ऑलरेडी बहुत खा चुका है वो स्वीट्स से उसकी पसंदीदा चीज खाएगा, राइट? सो आय होप यू अंडरस्टँड डिलिमिट म्हणजे मी काय म्हणतो. आपल्या लिमिटनुसार त्याला प्रॉब्लेमला डिलिमिट करायचं, विच बेसिकली व्हॉट वी राईट इन अवर थीसिस इज अ लिमिटेशन्स टू दी स्टडी. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. आप सब लोगों को आपके प्रॉब्लम में
डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मालूम होने चाहिए आपके थीसिस में या आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में. काय असतात हे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? कॅन यू एक्सप्लेन मी? क्या होते हैं? गलत बताइए पर बताइए. Dependent mean that depends on the other variable. When we change other variable, then our that function changes. That is called as dependent variable. And Very if, good. Can you give me example? I got it. It's for correct example, answer. pressure is the dependent variable because if we change the volume and temperature, then pressure also changes. Very good. Right. So Yes. whenever we do our own research, we collect the data. So in that data, we have to find the variable. Say for example, मैं अभी जब एक शेड्यूल कास्ट का डेटा लिया था रायबरेली में, so I was looking at only the gender, female SC inhabitants in one particular village. So I wanted to know their status of income. How do they earn money? Okay, so those who were working as a laborer, those who were getting some help from government because they were BPL card holders, and those who were getting money from their husband. So the dependence of those scheduled caste women were on the source of income from A, B, C, D, whatever it may be. One. Then I try to link their health, and I wanted to know if a scheduled caste woman is financially independent, what is correlation to her health, and if she is dependent on her husband or son or any other family member, what is the status of her health. Then I further went down and I said violence, क्या उसका पति उसे मारता है या एट्रोसिटी होती है. So you see, when you try to do, अभी हम तो ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में बैठे, आप अगर ऑफलाइन में होते तो मैं आपको एक वो ट्री निकाल के देता हूँ कि आप कितने वेरिएबल उसमें से निकाल सकते हो. The beauty of research is that the more you think, the more beautiful it becomes and more complex it becomes, which in my terminology more simple it becomes. Okay, so आपको वो देखना है कितने डिपेंडेंट है और कितने इंडिपेंडेंट है. Of course, all of you have formulated the hypothesis, and then when you collect the data, the validity of data must be ensured, internal and external. When it is collected primary source, there are techniques to sanitize the data. अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, स्टूडेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या खुद कलेक्ट करते हो, फिर भी आपको डेटा को सैनिटाइज करना है. आप जब सेकेंडरी डेटा लेते हो तो मेक श्योर इट इज from a reputed source which can be cited so that you will not be responsible for if something falsely quoted by you. Analysis and interpretation of result. अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में जनरल बताता हूँ. First you select the area, then you select the topic. Say I select social science and I selected a topic of farmer suicide. Then I ask myself, farmer suicide में मुझे क्या करना है? Once I have the research question, I went to the literature and studied it. If I found the answer, I do not need to do the research on that particular question. If I do not find the answer, I went back and I refined my question. Okay, this is what I wanted to do. Once my research question is refined, I again went to the literature to check whether I get the answers or not. If I get the answer in the literature, I will not again do this. I will modify my research problem. But if I do not get anything, then I will come out with hypothesis, goal and objective. जो आप अब तक कर चुके हैं. Then I will design
हे महत्वाचं असतं बरं का. आप में से अगर कुछ लोगों ने अभी काम शुरू नहीं किया है ना, तो सोच समझ के काम करो. मेरा जो यूपी का काम किया उससे अलग डिजाइन में अभी एमपी के लिए कर रहा हूँ. I always emphasize on, see, design means what, how much resource time I have, what are my expected outcome through my hypothesis and what are my objectives and goals. उसके ऊपर ही आपका डिजाइन होना चाहिए. देन इथिकल इशू, बायस. अरे कर लूंगा सर, अरे शॉर्टकट मार लेंगे, अरे गाइड को पता नहीं चलेगा, अरे डिग्री मिल जाएगी. साइंस वाले लोग भी, एक मेरी स्टूडेंट थी, सर मैं एक्सपेरिमेंट कितने बार करूं, एक बार करूं या 500 बार करूं, वही रिजल्ट मिल रहे हैं. साइंस की थी. मैंने कहा बेटा, ऐसा पीएचडी में कहीं लिखा नहीं है कि तू एक बार कर या पूनम के रात कर या अमावस के रात कर. कुछ नहीं. इफ यू आर गेटिंग ऑल योर इक्विपमेंट्स आर कैलिब्रेटेड एंड यू आर ऑनेस्ट, even 10 time experiment is more than enough. So a researcher will come across lot of ethical issues while designing the study. कि वो शॉर्टकट लेगा, वो अपना बायस डालेगा उसमें. one has to be cautious. Then come the population and sampling. Okay, तो कितना पॉपुलेशन है. वर्ल्ड बैंक कहती है अगर पॉपुलेशन 100 है तो आपका सैंपल 5 होना चाहिए. अब आप बोलोगे सर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में तो 40 लाख हो, मैं 5%. तो एकेडमिक के लिए आपको वो माफ है, बट फिर भी आपका सैंपल जस्टिफाइबल होना चाहिए. मैं अगर 10 लोगों को मिलकर पूछता हूं कि मोदी कैसा, और मैंने बोल दिया, 10 लोगों ने बोला कि वो बहुत अच्छा है, तो आई एम नॉट रिफ्लेक्टिंग 140 करोड़ पीपल ऑफ दिस कंट्री. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 10 पीपल. जो मैंने आज सवेरे आपको बोला था ना कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव में बोला था आपको लैंडस्लाइड मिलेगी, आज उल्टा क्यों हो रहा है. हो सकता है जो सैंपल था वो गलत था, या उन्होंने गलत जानकारी दी थी. सो पॉपुलेशन सैंपलिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आप क्लस्टर सैंपलिंग कर रहे हो, रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो, कन्वीनियंट सैंपलिंग कर रहे हो, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर रहे हो, इसके ऊपर आपको जानकारी मिलेगी ये सेशन में जो 7 दिन आप यहाँ होंगे. देन वेरिएबल्स, जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बताया था, राइट. मेक श्योर देर आर नो बायसेस. इवन इन सैम्पलिंग में भी बायस करता है कैंडिडेट, राइट. वंस इट इज डन, देन यू कम आउट विद द टूल. काय असता तो रिसर्च टूल? कैन एनीबडी टेल मी क्या होते हैं रिसर्च टूल? व्हाट आर द रिसर्च टूल? गलत जवाब दीजिए, पर दीजिए, डोंट स्टे क्वाइट. प्रायमरी डेटा, सेकंडरी डेटा. ओके, अजून? स्टॅटिस्टिकल टूल्स. नहीं, SPSS. नहीं, नहीं. वो प्राइमरी सेकंडरी थोड़ा बराबर था. और सर इंटरव्यू शेड्यूल आणि क्वेश्चनेअर. That is the part of primary data. पार्शियली करेक्ट. रिसर्च टूल का मतलब कौन से हथियार लेके आप रिसर्च करोगे. आपको रिसर्च में क्या चाहिए? डेटा. डेटा किती प्रकारचा असतो? प्राइमरी, सेकंडरी. प्राइमरी डेटा आप कैसे लोगे? क्वेश्चनेयर, वन ऑन वन इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, टेलीफोनिक डिस्कशन, ईमेल, गूगल सर्वे, इनफॉर्मल डिस्कशन, ये सब टूल होते हैं. मेरे हर रिसर्च में मुझे टूल डालने पड़ते हैं और जस्टिफाई करना पड़ता है. कल ही मैंने मेरा एमपी का जो फाइनल किया, आई हैव एडेड दिस टूल. विदाउट टूल यू कैन कंडक्ट रिसर्च, राइट. सो हाउ यू विल गैदर द डेटा, वो टूल होते हैं. वंस आपने टूल फाइनल किए, अरे Somebody's मांजर, mic is on. अरे Yes, एक मिनिट माझ्याकडे सर. मी त्यांना म्यूट करते. एक मिनिट. माझ्याकडे 2 मांजरी आणि 2 कुत्रे आहेत. प्राण्यांवर प्रेम करतो. मग पायलट स्टडी. ओके, conduct a pilot study. Now, pilot study means you take whatever tools you have gathered, go yourself 5, 10, 15, 20 ते भरून बघा. आणि बघा whether you are getting the result, are you happy with the answers you are getting, do you want to modify, amend. Once your pilot is concluded, come out with a work plan.
कि मैं 6 महीने में मेरा डेटा पूरा कलेक्ट करूंगा पीएचडी का, राइट? वंस द डेटा इज कलेक्टेड, दी डेटा हैज टू बी मॅनेज. उसमें होता है आप डेटा को सॅनिटाइज करोगे. सॅनिटाइज म्हणजे क्लीन करायचा, त्याचं कोडिंग करायचं. तुम्ही मदत घ्या. ये आप खुद अगर नहीं कर पाते होंगे तो किसी की हेल्प लो, बट इट इज बेटर टू डू इट because you will be responsible for anything that you will be answering in your viva, right? And then ultimately, once data is analyzed, you go for the interpretation and then to the conclusion and reporting. ये पाथ होता है साइंटिफिक रिसर्च का. ये क्लियर हो गया? क्लियर टू ऑल? ओके. अभी बजे 12:03. मॅडम इथे एक 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा का? हा येस सर ब्रेक कारण आज आहे दत्त जयंती आहे आमच्याकडे. कुळाचार असतो. आरती सुरू झाली आहे 12 वाजता. ओ येस सर येस काही प्रॉब्लेम नाही 5 मिनिटात आरती करून येतो. आपण 10 मिनिटं म्हणजे 12:13 भेटू. यस सर यस पार्टिसिपेंट्स आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए मीटिंग लीव मत करिए. हाँ, मीटिंग लीव मत कीजिए. 12:13 पे हम चालू हो जाएंगे फिर से. ठीक है. यस सर ओके ओके सर थैंक यू.